Okay, class, whenever we are talking about the data, whenever we talk about data, so data is actually raw facts and figures. Whenever we talk about data, data is actually class raw facts and figures. But when we align the data in a systematical order, when we align the data in a systematical order, then it is converted into information. When we aligned it into class of, yeah, when we arrange our data in a systematical order, then it is called as information. Then it is called as information. Now, when we talk about the chapter that we are studying today, this chapter is called databases. This chapter is called database, and the main aim of this chapter is class to convert data into information, to give meaning to your data. आपके डाटा को मीनिंग्स देने के लिए क्लास, मतलब देने के लिए क्लास, we use database because it's a way to save data in a structured format, in a proper format. Now, when we talk about database आपके पास दो टाइप्स की होती है. One database is called relational database, and the other database class is called flat database. Now, when we talk about relational database, so relational database class is not part of your O level syllabus. आपके O level के syllabus का class जो part है, that is flat database. Relational database we are going to study, जो बच्चे मेरे पास यहाँ पे अभी A levels पढ़ रहे हैं, तो relational database class it's a part of A levels, not O levels. O levels में क्या है आपके पास? You are having flat database. Now, when we talk about flat database class, flat database class, it's actually a database that consists of only one table. In relational database class, we are having multiple tables, but in flat database, we are only having one table. Now, when we draw this table, let me draw this table in front of you. मैंने आपके सामने क्लास ये टेबल ड्रॉ किया. लेट्स से मैंने आपके सामने क्लास एक टेबल ड्रॉ किया. So this is one of the table class in front of you. मैंने इस टेबल को क्लास नाम दे दिया, लेट्स से
Mac test. I name the table class as Mac test, और यहां पे क्लास मैंने यहाँ पे कुछ fields introduce करवा दी. Let's say one of the field was Mac ID, student name, student address, and date of birth. So ये जो आपके पास क्लास fields हैं, I am talking about these fields. I am talking about the horizontal field. इसको हम लोग क्लास कहते हैं fields. Yeah, we also call it columns as well. या तो इसे हम क्लास field कहते हैं या we call it columns. Similarly, ये जो हमारे पास vertical record है, ये जो हमारे पास क्लास vertical record है like this, this is called raw. Yeah, we also call it record as well. एक टेबल के अंदर क्लास आपके पास एक फील्ड और एक रिकॉर्ड का जो इंटरसेक्शन होता है, या वी कैन आल्सो से इट एक कॉलम और एक जो रो का इंटरसेक्शन होता है. लेट्स से दिस और दिस और दिस इज कॉल्ड अ सेल. दिस इज कॉल्ड अ सेल. सेल क्लास क्या चीज होती है आपके पास? इट्स एन इंटरसेक्शन. It's an intersection of rows and columns. Moving forward, class, every time in your database there must be a field. एक फील्ड ऐसी होगी आपके पास, that field is always unique. That field is always unique for every record. We call that field class as the primary key. So primary key class क्या होती है आपके पास? A field for which every record is unique. For example, हमारे इस करंट केस के अंदर Mac ID will be acting as the primary key, because the ID for two different students cannot be same. It is always unique, it is always different. So हम लोगों ने क्लास अभी तक यहाँ पे क्या देखा? We talked about data, we talked about information, we talked about the types of databases, and we have seen that flat database के अंदर it consists of only one table, and we also draw one of the table, और table के अंदर class it consists of fields and records, और इन दोनों का intersection जो होता है it is called cell, and there is one field in the table that is called as the primary key. And primary key कैसी की होती है? A field for which every record is unique. Now moving forward, अब हमारे पास क्लास जिस तरह सूडो कोड्स के अंदर डेटा टाइप्स होती थी, तो यहां पे भी क्लास वी आर हैविंग द डेटा टाइप. तो यहां पे भी क्लास वी आर हैविंग
data type. Now, when we talk about the data types, let's say in pseudocodes, we are having a data type class that is called string. But in databases, we will not call it a string. We will call it as text. Similarly, when we talk about another data type of the pseudocode that is called char, that consists of single characters, only one character, but in databases, we won't be calling it as char. We will be calling it as, we will be calling it class as text again. Moreover, class, और data types क्या होती हैं आपके पास? We are having numbers. So in pseudocodes, we call them integers. Whole numbers को we call them integer. But over here, we are going to call them number. क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग? We are going to call it number. या अगर हम लोग क्लास पैसों की बात कर रहे हैं, तो we can also call it currency as well. और अगर आप लोग गलती से क्लास इंटीजर भी लिख देते हैं डेटाबेस के अंदर, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. लेकिन ज्यादा प्रीफर क्या करें कि राइट डाउन नंबर. ठीक है. हमारे पास एक और डेटा टाइप होती थी क्लास फॉर द फ्रैक्शनल नंबर्स, एंड दैट वी कॉल रियल इन pseudocodes. But over here, class, we can call them either number, or we can also call them decimal as well. Furthermore, class, we are having one data type in pseudocode that is called Boolean. So over here, class, it is called Boolean. Same कहलाती है आपको यहाँ पे भी Boolean, और वहां पे भी आपको it is called as Boolean. Now let's move forward. और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे. Now, before we move forward towards the practical approach, towards the questions, पहले क्लास थ्योरी वाला पार्ट मैं आप लोगों को कवर करवा देता हूं. And in theory part, there are two things that are left that you should know about when you are dealing with databases. One more part class that is called as a query. एक कहलाता है क्लास आपके पास क्यूरी. क्यूरी क्लास क्या होती है आपके पास? Whenever you want to search for any particular record in the database, that is called class as query. ठीक है. तो आपकी क्लास क्वेरी क्लास क्या होती है? सर्चिंग for a particular record in the database. आप अपने डेटाबेस में अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली क्लास कॉल्ड एज क्वेरी. फर्दरमोर, नाउ लेट्स राइट डाउन क्लास द एडवांटेजेस. आपको हम क्लास यहाँ पे हम डिस्कस भी कर लेते हैं द एडवांटेजेस ऑफ database. Let's discuss class the advantages of database. The first advantage class that
comes of the database class is that we can apply multiple filters when searching for a particular record. For example, class, you are searching for a person, तो आपको पता था, उसका सेक्शन भी पता था, आपको उसका नाम भी पता था, आपने सर्च कर लिया, लेट्स से सारिम, तो मुझे पता था सारिम इज स्टडिंग क्लास इन A1S5 एंड सारिम का सेक्शन भी पता था मुझे A1, मुझे इनका नाम भी पता था, तो क्लास आई कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स ऑन द डाटा। तो मैंने A1S5 सारिम, ठीक है, फर्दर मुझे इनका जीआर नंबर भी पता था, दैट वाज 1112, तो मैंने एक और फिल्टर अप्लाई कर दिया, 1112 का सारिम आ गया हमारे पास। तो वी कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स whenever we are applying searches in the databases. This is one of the advantage class of the database. Second advantage class that comes is backup of data can be maintained. Third, we can sort our data. We can sort our data in any order. There are two types of orders class that are present in database. One order class is called ascending, means class from smaller to larger values, and the other order class is called descending, this is class from larger to smaller values. Further class, the advantage class that comes of the database is we can transfer data easily over the internet. This is also one of the advantage of using class databases. We can transfer data class online. सर्चिंग क्लास आपके पास इजी हो जाती है, searching is easy, and class again less space required as compared to file based approach. अगर आप फाइल्स के अंदर डेटा सेव करते हैं तो एज कंपेयर टू दिस आपके पास इस अप्रोच के अंदर लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी क्लास जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अबाउट द डेटाबेसेस, एंड फॉर दिस ईयर दैट इज अक्टूबर नवंबर 2020 आई एम मार्किंग इट एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपका क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेटाबेस के वो क्वेश्चन हमेशा देता है कभी भी, लेकिन उसने क्लास थ्योरी का पार्ट क्वेश्चन नहीं दिया। दिस माइट इट्स माइट पॉसिबल बिकॉज इट्स गिवन इन योर बुक कि आपके पास वो एडवांटेजेस पूछ ले ऑफ द डेटाबेस, 5 मार्क्स का सवाल दे दे आपको, ठीक है। So you should know about 6 to 7 advantages. Now let's see if we have any questions till now. Let me check. We have a question from Nihal sir. Pseudocodes and database में same name से call out क्यों नहीं होते?
अच्छा देखो सारे तुम्हें इसकी मैं कैसे एग्जांपल दूं, मैं कैसे एग्जांपल दूं। हाँ देखो, सॉरी निहाल, निहाल आपका सवाल है ये। निहाल देखो, इसके अंदर सेम एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, सेम हम लोग इसलिए यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप लोग जब स्कूल में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में जाता हूँ, सो कॉलेजेस के अंदर आई यूजुअली, मुझे सब मैक मैक, शाम में सब मुझे मैक बोलते हैं, शाम में हर जगह स्कूल कॉलेज के अंदर मुझे मैक बोला जाता है। घर में मैं आता हूँ, माय मॉम यूज्ड टू कॉल मी मोहम्मद अली। ठीक है। सो हर जगह के आपका डेकोरम ना थोड़ा डिफरेंट होता है। सो यही बात आप अगर स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लें, या आप कहीं शाम में कहीं खेलने गए हैं स्पोर्ट्स के अंदर, फील्ड के अंदर, तो हर बंदे का कोई ना कोई निकनेम होता है, डिफरेंट नेम से आपको कॉल आउट किया जा रहा होता है। ठीक है। सो लेकिन आप अगर क्लासरूम में बैठे में अगर आपके टीचर कॉल कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट होगा, आपके घर में आपको कोई और निकनेम होगा। सो दैट्स एक पर्टिकुलर रीजन है। तो डेटा बेसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमने एक पर्टिकुलर डिफाइन किया हुआ है कि भाई वी आर गोइंग टू यूज दीज टर्म्स whenever we are defining the text, whenever we are defining the chart, whenever we are defining the numbers, so we are going to use this type of data। ठीक है। तो बस एक डेकोरम बना हुआ है, नॉट मोर देन दैट, और उससे कोई वो नहीं है। डेटा टाइप्स तो आपके पास सेम ही होती है। ठीक है। आई होप आपको मैंने क्वेश्चन को आपको मैंने काफी क्लियर हो गया होगा आपको। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम। आई कैन सी फ्यू स्टूडेंट्स जो सुबह 9:30 में भी मेरे पास क्लास में थे और अभी भी बैठे हुए हैं वो। सो बस वो सुबह 9:30 पे क्लास में बैठा था एंड कंटिन्यूस क्लासेस थी। तो इसके बाद भी अभी एक क्लास और है, तो कंटिन्यूस क्लासेस चलनी है, तो आप लोग अभी उस वक्त से मैं पढ़ा रहा हूँ। खैर, वेयर वर वी क्लास, हमने डेटाबेस की कुछ खास बातें कर ली हैं। नाउ क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास, लेट्स ओपन वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द डेटाबेसेस। एक क्वेश्चन जरा ओपन करते हैं आप लोग के सामने फ्रॉम द डेटाबेसेस। लेट्स सी व्हाट एग्जामिनर इज सेइंग। लेट्स सी क्लास, लेट्स स्टार्ट क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा, मैं आप लोगों को ये सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा। जो बच्चे बहुत सारे हाईब्रो कॉलेज के बैठे हुए हैं यहाँ पे मेरे पास, एंड जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ी ओ लेवल कंप्यूटर साइंस, सो दे वोंट बी हैविंग माय दिस बुकलेट। मेरी ये वाली बुकलेट आप लोगों के पास नहीं होगी। तो आई विल बी सेंडिंग यू माय दिस बुकलेट, दिस इज कॉल्ड P2 नोट्स बाय मैक। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। दिस कॉपी, this book is containing multiple different definitions, the theory part of the paper too, and moreover बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस टॉपिक वाइज भी इसके अंदर बहुत सारे आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसी बुक से मैं आप लोग को आज सारे डेटाबेस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है। तो वन ऑफ द क्वेश्चन क्लास ये बता रहे क्लास, अ प्रोग्राम इज रिटन टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेंबर ऑफ द स्विमिंग क्लब। आपके पास मल्टीपल चीजें सेव कर दी गई हैं एंड नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू द डाटा टाइप। ठीक है। तो सबसे पहले क्लास नेम, तो नेम की डाटा टाइप एनीवन, आप लोग मुझे बताएंगे क्लास, कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट विल बी द डाटा टाइप क्लास फॉर द नेम। एनीवन, व्हाट विल बी द डाटा टाइप फॉर द नेम। लाइबा एंड सारिम ने हमें बता दिया जवाब कि सर दिस विल बी टेक्स्ट एज यू हैव टोल्ड अस, जैसे आपने सर बताया हमें कि दिस विल बी टेक्स्ट। ठीक है। एहसन तहा, राइट आंसर बेटा। जेंडर, अब ये जेंडर बता रहे क्लास के जेंडर की डेटा टाइप क्या होगी, एनीवन।
अब देखिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जबरदस्त, हैदर कंफ्यूज हो गए, लाइबा भी कंफ्यूज हो गई, जबरदस्त। ठीक है सर, देखिए जेंडर, जेंडर अगर वो यहाँ पे ये लिखता ना कि जेंडर जो है वो मेल है, तो फिर आप लोग क्लास यहाँ पे बूलियन लिख सकते थे, फिर आप लोग बूलियन लिख सकते थे, हाँ सही है, या तो मेल यस या नो। ठीक है, इसने नहीं बोला मेल फीमेल का, इसने आपसे सिर्फ पूछा है, इसने आपसे सिर्फ पूछा है कि व्हाट इज द जेंडर। तो जेंडर आप लोगों को पता है क्लास, या तो मेल होता है या फीमेल। तो क्लास ये मेल फीमेल क्या चीज है, इट्स अ टेक्स्ट। ठीक है बेटा, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगी ये वाला पॉइंट। देखिए एग्जाम में कंफ्यूज करता है आप लोगों को। अब वो बोल रहे क्लास स्टेटस या तो सीनियर या जूनियर, तो अगेन क्लास, अगेन इट विल बी टेक्स्ट। फी, फी क्लास क्या होनी चाहिए, फी एनीवन, सारिम राइट आंसर। मैं चाह रहा हूं कोई और आंसर भी कर दे। ताहा, ताहा डेसिमल में शायद एंटरटेन नहीं करता, मैं नंबर नहीं देता शायद। करेंसी इज फाइन, तो मैं या तो क्लास नंबर रखता या करेंसी रखता। डेसिमल भी वैसे करेक्ट है, चलो। और क्लास टीम मेंबर यस या नो, तो क्लास इट विल बी, नाउ इट विल बी बूलियन। ठीक है, 5 मार्क्स। लेट्स सी। अब ये बोल रहे क्लास एक स्विमिंग क्लब है, क्लास 50 मेंबर्स कंटेन करता है, एक डाटा स्ट्रक्चर चूज करो फॉर स्टोरिंग द डाटा एंड गिव द रीजन एज वेल। सो क्लास वी नो, जब हमें 50 मेंबर्स का डाटा सेव करना है क्लास, तो वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर एरे। और एरे क्लास 2 रीजन क्लास, बिकॉज it can contain multiple values, that's why। ठीक है भाई, let's move forward। match the columns, match the columns class। तो सबसे पहला वाला क्लास मुझे कौन बताएगा क्या चीज है ये, एनीवन, निहाल, लाइबा, जबरदस्त। समिया ने क्लास हमें पहला बता दिया। समिया बेटा आप याद रखेगा आइंदा, जब भी ये एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो ना बेटा, स्ट्रिंग के ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। कितने होते हैं, डबल। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं हमारे पास 4 के ऊपर। सारे आप भी अब याद रखेगा बेटा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास किसके ऊपर होते हैं, 4 के ऊपर होते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं, ये क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ये स्ट्रिंग है और ये 4 है। 4 के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है और स्ट्रिंग के ऊपर डबल होता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें याद रखेगा। तो दिस इज एक्चुअली 4। ठीक है, टू, टू तो सबको ही पता है क्लास, टू क्या चीज है, कशिश ने बता दिया कि सर इंटीजर। और क्लास 2.0 क्या होगा, इट विल बी रियल। और क्लास स्ट्रिंग क्या होगा आपके पास, 12। एंड क्लास बुलियन क्या होगा आपके पास, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेटाबेस के सवाल कहाँ हैं, अच्छा ये आ गया। अच्छा क्लास मैं पहले ये वाला सवाल नहीं करवा रहा, ये 53 में जो सवाल है आखिर में करवाऊंगा, बिकॉज दिस इज द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ये अलग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। और अभी आप लोगों को एक चार्ट भी करवाना है। वो चार्ट, वो चार्ट कहाँ है, वो चार्ट, दिस इज पेज नंबर 54। वो चार्ट है आपका, शायद थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है मैंने। ओके, ये बता रहे क्लास एक बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, और आई थिंक आप सबने वैसे सॉल्व किया वो, कुछ बच्चों ने, जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ एक जल्दी से रिकैप करवा लेते हैं। ये बोल रहे क्लास एक डेटाबेस है, उसका नाम क्या है, मार्क्स। ठीक है, आपको मैंने क्लास स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर एक बात बताई थी
क्या आप लोग कौन सा डेटाबेस पढ़ रहे हैं? यू आर स्टडिंग अ डेटाबेस दैट इज कॉल्ड अ फ्लैट डेटाबेस। एंड फ्लैट डेटाबेस क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टेबल। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ये बता रहे क्लास डेटाबेस बोले या आपका टेबल बोले, बात एक ही है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टेबल। और ये बता रहे कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। वो बोल रहे क्लास सबसे पहला सवाल, गिव द नंबर ऑफ फील्ड्स दैट आर इन ईच रिकॉर्ड। तो क्लास कोई बच्चा मुझे बताएगा कितनी फील्ड है मेरे पास यहाँ पे? तो कशिश है द आंसर। क्लास कशिश ने बता दिया सर 1 2 3 4 5 6 7। तो सर आंसर इज 7 फील्ड है हमारे पास। ठीक है, अब ये बोल रहे क्लास कि इसके अंदर प्राइमरी की आपकी कौन सी होगी और रीजन बताएं। एनीवन, कोई बच्चा बताना चाहेगा प्राइमरी की कौन सी होगी और उसका रीजन? मैं चाह रहा हूं कोई बच्चा गलत जवाब दे दे। सब बच्चों ने वैसे अभी तक सही जवाब दिया है, सारिम, निहाल, समिया, एवरीवन हैज गिवन द क्लास राइट आंसर। सो ज्यादा इसको हम लंबा नहीं करते। तो क्लास आईडी विल बी द आंसर। और इसका रीजन क्लास क्या होगा? मैं एक रीजन एक दफा लिख के दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीटेडली हर दफा आता है। ठीक है, मेरा मेन फोकस जो आज की क्लास का है ना क्लास, माय मेन फोकस इज दिस, माय मेन फोकस इज क्वेरी बाय एग्जांपल ग्रिड। मेरा मेन फोकस ये आज की क्लास का, क्वेरी बाय ग्रिड एग्जांपल, ये मेरा मेन एम है। जो अभी मैं आप लोगों को सारी बातें करवा रहा था, जो मैं आप लोगों पर सारी बातें करवा था, ये मोस्ट कॉमनली 80% 70% बच्चों को पता ही होती हैं सारी बातें। जितनी भी मैंने आप लोगों को अभी तक बातें बताई है सारी, ये 70-80% बच्चों को पता होती है सारी बातें। कुछ ऐसी बातें बताऊं ना मैं जो आप लोग को नहीं पता हो। तो मेरा तो मेन एम यही है कि मैं आप लोगों को वो चीज पढ़ाऊं जो आप लोग को बाकी टीचर्स ने अभी तक नहीं पढ़ाई होगी, या मे भी पॉसिबल कुछ बच्चों ने शायद पढ़ भी ली होगी, कुछ बच्चों ने देख भी लिया होगा। तो माय मेन एम इज ऑन दैट क्वेरी बाय ग्रिड एग्जांपल। दो बातें उसके लिए आप लोगों को करवानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट एज वेल। आज की क्लास में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो बातें भी यहाँ पे कवर अप करूँ। ठीक है, सो वेयर वर वी? अच्छा जी, तो क्लास इसका मैंने आंसर एक दफा लिख के दिखा दिया आप लोग को, आपने यहाँ पे बता दिया। क्लास आईडी will be the primary key because each because this is the field for which every record is unique. ठीक है, a perfect answer that you can write. अब ये बता रहे क्लास, this table is called query by grid example. query by grid example क्लास ये कहलाता है। और मैंने आप लोगों को क्लास ये टेबल के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। थोड़ा सा हिंट क्लास मैंने क्या दिया था? दिस वाज द हिंट। तो क्वेरीज हम लोग क्लास करते क्यों हैं? whenever we want to search for a particular रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स, जब कुछ पर्टिकुलर चीज के बारे में क्लास हमें रिकॉर्ड निकालना होता है, रिकॉर्ड सर्च करना होता है, वी गो फॉर द क्वेरीज। ठीक है, तो ये टेबल भी यही काम करता है। आपका जो इतना बड़ा डाटा है ना क्लास, इस पूरे डाटा के ऊपर क्लास वी अप्लाई फिल्टर्स। हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए होता है क्लास, तो अब हमें रीड करने इसको आना चाहिए, हमें इसको रीड करना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये बोल रहे क्लास फील्ड कौन कौन सी आपके पास यूज होंगी? स्टूडेंट नेम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। टेबल मार्क्स हमेशा सेम ही होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद flat databases, and flat databases contain only one table. Flat databases class contain only one table. Now let's move forward. अब ये बोल रहे क्लास के आपको क्या चीज सॉर्ट कौन से ऑर्डर में करना है? हमें सॉर्टिंग करनी है क्लास इन असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है? वी नीड टू क्लास सॉर्ट देम इन एन असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, तो हमें क्लास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्लास इसको सॉर्ट करना है। हमें क्लास शो क्या करना है, वी जस्ट नीड टू शो देम द नेम्स एंड class the criteria is that the marks in history should be greater than 60 या फिर और marks in geography class should be greater than 60. so this is our class criteria. तो क्लास मैंने यहाँ पे सर्च किया क्लास कौन से बच्चे ऐसे जिनके या तो हिस्ट्री में ग्रेटर देन 60 मार्क्स हैं या फिर क्लास ज्योग्राफी में ग्रेटर देन 60 मार्क्स हैं। लेट्स सी, दिस इज आवर टेबल। तो क्लास मुझे जल्दी जल्दी से क्लास कोई बच्चा बताएगा टेबल में देखते हुए कौन कौन से बच्चे क्लास जिनके या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में क्लास द मार्क्स आर ग्रेटर देन 60। एनीवन? तो निहाल ने हमें बता दिया सर पॉल स्मिथ एंड सारे ने बता दिया कि सर पॉल एंड डियाना ऑर्बोर ठीक है, परफेक्ट। अबूर, हाँ, व्हाटएवर। लेकिन क्लास अगर आप लोगों ने ये आंसर किया पॉल स्मिथ और डियाना ऑर्बोर तो क्लास यू विल बी गेटिंग क्लास 1 आउट ऑफ 2 मार्क्स। आपको 1 नंबर देगा एग्जामिनर, 2 नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्लास उसने आप लोग से रिक्वेस्ट करी थी कि नेम्स को किस ऑर्डर में प्लेस करना है। यू हैव टू प्लेस देम इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नेम्स। तो क्लास अब मुझे बताएं क्लास आप लोग के पास 2 लोग हैं पॉल एंड डियाना, तो कौन पहले आएगा? क्लास असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा। तो क्लास हमें बता दिया यहाँ पे निहाल ने कि सर पहले डियाना आएंगी बिकॉज डी पहले आता है और बाद में आपका पॉल आएंगे। क्लास पूरा नाम लिखेगा आप लोग, बाद में आपके पास आएंगे पॉल स्मिथ। ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर हैज रिक्वेस्टेड अस टू सेट द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर बेटा। ठीक है, दैट्स व्हाई। एंड क्लास दिस एग्जांपल इज कॉल्ड क्वेरी बाय ग्रेड एग्जांपल। नाउ लेट्स सी, अगले पार्ट में बोल रहे क्लास फील्ड। तो हमें पता है क्लास यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड थी हमारे पास, स्टूडेंट नेम, अगली फील्ड देखते हैं क्लास। ये बोल रहा है क्लास एंड मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स। उन सारे बच्चों के क्लास वो बोल रहे हैं डिस्प्ले करवाओ ओनली नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स with less than 40 marks in both maths and English। तो क्लास टेबल तो आपको पता है एक ही होगा, दैट विल बी मार्क्स मार्क्स मार्क्स। सॉर्टिंग करने के लिए क्लास ने नहीं बोला, सिर्फ क्या शो करने के लिए बोला क्लास नेम्स, हमने क्लास यहाँ पर टिक कर दिया। एंड द क्राइटेरिया क्लास इज लेस देन 40 in English and less than 40 in English maths। so class this table awards you 3 marks। अच्छा जी, हसीब सर ज्योग्राफी में पॉल के लेसर देन 60 हैं। तो बेटा हसीब हसीब यहां पे हमारे पास क्या था, वी वर परफॉर्मिंग, और किसी एक में भी ग्रेटर देन 60 हो ना, किसी एक में भी ग्रेटर देन 60 हो तो आर वी आर बाउंड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स। किसी एक में भी आपका और ऑपरेशन अप्लाई किया गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास यहाँ पे। अब नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड क्लास, आप लोग को एक चीज दिखानी है, आप लोगों को एक चीज दिखानी है। लेट्स सी, अब वो मिल जाए वो कहाँ ढूंढूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। डाउनलोड्स में तो नहीं है।
हाँ मिल गया। Class, this table is very important. This table, class, is very important. जी क्लास, क्लास कभी कभार ऐसा हो सकता है आपका एग्जामिनर आप लोग से रिक्वेस्ट करे, आप लोग से क्लास रिक्वेस्ट कर सकता है क्लास के उन सारे बच्चों का नाम डिस्प्ले करो, या नाम नहीं, लेट सपोज क्लास आपके एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट कर दी कि उन सारे बच्चों को नाम डिस्प्ले करो जिनका सेक्शन है आपके पास A1 S5। तो आपने क्लास क्या किया, जो सेक्शन वाली फील्ड होगी आप वहां पे क्लास क्या लिखेंगे, सेक्शन क्लास क्राइटेरिया के अंदर इज इक्वल टू A1 S5। तो क्लास जब आपको कभी कभार स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना हो तो क्लास वी गो फॉर अ क्वेरी स्ट्रिंग। तो आप लोग इस तरह भी क्लास सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इस तरह भी सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्लास वो सारे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी जो सेक्शन क्लास A1 S5 के, वो सारा रिकॉर्ड क्लास आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मोर ओवर अब क्लास आपके एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी उन सारे बच्चों के नाम डिस्प्ले करवा दो जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो, ठीक है, उन सारे बच्चों के क्लास नाम डिस्प्ले करवा दो जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो क्लास देन द क्राइटेरिया विल बी ए एंड क्लास इसके आगे आ जाएगा आपके पास स्टैटिक। इसका मतलब क्लास क्या होता है आपके पास क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर कि आपका स्टार्टिंग वर्ड क्या होना चाहिए ए, और उसके आगे स्टैटिक का मतलब क्लास एनीथिंग कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन बस स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। कभी कभार आपका एग्जामिनर बोल सकता है क्लास आप लोगों को कि आपके उन बच्चों का नाम डिस्प्ले करवाओ जिनके नाम के अंदर अली आ रहा है। तो आप लोग क्लास क्या क्राइटेरिया बनाएंगे फिर, दोनों जगह आप लोग के पास वो आ जाएगा स्टैटिक। सो स्टार्टिंग में कुछ भी हो, आखिर कुछ भी हो, बस बीच में अगर अली आ रहा है तो क्लास हम उन सब बच्चों का नाम क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। सिमिलरली क्लास कभी कभार आपका एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे उन बच्चों का नाम डिस्प्ले करवाओ जिनके नाम की लेंथ 5 कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल अलीजा, जिनके नाम की लेंथ 5 कैरेक्टर्स है, तो वो मुझे उन बच्चों के नाम डिस्प्ले करवाओ। तो क्लास फॉर दैट दिस इज द फॉर्मूला क्लास फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ। स्पेसिफिक लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्लास आपके पास ये फॉर्मूला यूज होता है क्लास, ठीक है। एंड आज तक कभी ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आया, मैं ये बात भी बता दूं आप लोग को, ठीक है। आज तक कभी ये सवाल नहीं आया कि स्पेसिफिक लेंथ का कैरेक्टर डिस्प्ले करवाओ। दिस इज द क्वेश्चन दैट माइट कम इन द क्वेरी बाय ग्रिड एग्जांपल, ठीक है। ये आ चुका है आपके पास, ये जो ए वाला ए स्टेरिक वाला है ये आ चुका है आपके पास। देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2017 दैट वाज डिपेंडिंग ऑन द ट्रेन। तो आपको ट्रेन का क्वेश्चन था, वो ट्रेन और इंजन स्पेसिफिक, आपको दो टाइप के इंजन थे, एक फ्राइट इंजन और एक पता नहीं कौन सा पैसेंजर इंजन।
तो पैसेंजर इंजन का स्टार्टिंग में पी था और आगे कुछ भी हो सकता है नंबर, और फ्राइट इंजन के आगे आपके आगे एफ था और आगे कुछ भी हो सकता है। वो बोलते हैं पैसेंजर इंजन सारे डिस्प्ले करवा दो। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग कैरेक्टर पी किया और आगे स्टैटिक बना दिया। दिस मींस ऑल द इंजन दैट आर ऑफ द पैसेंजर्स, तो स्टार्टिंग दे वर स्टार्टिंग विद पी। दिस इज हाउ वी परफॉर्म। खैर, और इसके बाद जो क्राइटेरिया है क्लास वो आपके पास सिंपल है। लाइक अगर स्पेसिफिक नंबर है तो क्लास यू कैन राइट इज इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50, ग्रेटर देन 50। और अगर आपको बोलना है सारी वैल्यूज डिस्प्ले करवा दो बस सिर्फ 50 वाली ना हो तो नॉट 50। अगर आपको कोई रेंज डिफाइन करनी हो तो क्लास यू कैन आल्सो डिफाइन द रेंज लाइक दिस बाय यूजिंग द वर्ड बिटवीन। ठीक है, और ये आपके पास क्लास ये सारे मल्टीपल क्राइटेरियाज आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो आप लोगों को क्लास ये क्राइटेरियाज भी डेटाबेस के सारे पता होने चाहिए। कोई स्पेसिफिक वर्ड, स्टार्टिंग लेटर ये हो, एंडिंग लेटर ये हो, डेट कोई स्पेसिफिक हो, एंड ऑल दैट स्टफ। ये आप लोगों को क्लास सर्चिंग क्राइटेरिया भी आने चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। बाकी तो सारे आसान ही सवाल हैं। चलें एक ये वाला सवाल करवा देता हूँ क्लास आप लोग को। एक ये वाला करवा देता हूँ और आखिर में हम लोग क्लास क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे क्लास दैट वाज ऑन द टॉप पेज स्टार्टिंग अंदर उसके अंदर, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कंडीशन। वो कुछ कंडीशन डिफरेंट है तो वो वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग बस एंड करेंगे। फिर बाद में क्लास जब मैं आप लोगों को पूरे अभी पासवर्ड्स करवाऊंगा तो जितने भी और भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे डेटाबेस के, बिकॉज ईयरली भी आप लोगों को अभी करवाऊंगा मैं, तो उसके अंदर भी जो एटलीस्ट 2 साल के तो मैं करवाऊंगा, तो उसके अंदर भी डेटाबेस के जो क्वेश्चन आते रहेंगे तो मीन वाइल हम लोग वो भी सॉल्व कर लेंगे उस वक्त बाद में। ठीक है, तो ये बोल रहे क्लास एक डेटाबेस है। क्लास डेटाबेस का नाम क्या है, शीप। सही है। is used to keep the record of the sheep of on a farm. The sheep has been a unique air tag. हर sheep के अंदर क्लास क्या लगा हुआ है, एक यूनिक एयर टैग लगा हुआ है क्लास। ठीक है, और यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दे दी क्लास ऑफ द एयर टैग, that air n where n is a single digit. The farmer keeps the record of the date of birth, डेट ऑफ बर्थ का भी रिकॉर्ड रखता है, और वो बोल रहा है उसका जेंडर का भी ख्याल रखता है वो कि कौन सा जेंडर है, और उसका वेट का भी ख्याल रखता है कि वेट क्या है इन किलोग्राम। अब वो बोले क्लास व्हाइल लुकिंग एट द अबव क्वेरीज अबव स्टेटमेंट्स, आप यहाँ पे 4 फील्ड्स के नाम बता दें, उनके डेटा टाइप बता दें क्या क्या होंगी। ठीक है, तो वन ऑफ द फील्ड क्लास कैन बी, वन ऑफ द फील्ड नेम्स क्लास कैन बी शीप आईडी। अजीब सा नाम है शीप आईडी, शीप आईडी। और क्लास की डेटा टाइप क्या होगी आपके पास, टेक्स्ट। ठीक है, एक और डेटा टाइप क्लास आपके पास क्या हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ। तो क्लास, अच्छा डेटा सैंपल भी देना है, सॉरी। तो इसका डेटा सैंपल क्लास क्या हो जाएगा, ई ए आर। एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स दिया करें हमेशा। ठीक है, अच्छा ये हम लोग एयर टैग भी इसको बोल सकते हैं, नाम इसका एयर टैग भी अच्छा है वैसे। यू कैन ऑल्सो कीप द नेम एज एयर टैग एज वेल। मीनिंगफुल नेम होना चाहिए बस आपके पास। सर बिटवीन 10 and 20, 10 and 20 हसान बेटा, सॉरी ताहा बेटा, इट विल बी इंक्लूडेड। जब भी बिटवीन का वर्ड होता है एक्सट्रीम बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड, तो 10 और 20 इंक्लूडेड होगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अगली फील्ड क्लास हम लोग करते हैं, डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट क्लास, लेट मी टर्न ऑन द यूपीएस।
जी क्लास वेवर भी। सो क्लास 1 क्लास कैन बी डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल निहाल बेटा आपने सही बताया। डेट ऑफ बर्थ, डेटा टाइप क्लास इट विल बी, डेटा टाइप क्लास इट विल बी। अच्छा यहाँ पे आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप वैसे डेट भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग डेट अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहे। और आप लोग क्लास यहाँ पे टेक्स्ट बता दें, क्लास एग्जांपल दे दें डेटा की, दैट कैन बी 12/12/2020 एंड एनी अदर एग्जांपल। ठीक है। थर्ड फील्ड क्लास कैन बी वेट, तो क्लास वेट की एक फील्ड रख लें, वेट। डेटा टाइप क्लास विल बी डेसिमल, or it can be number as well, and class data sample class can be 20.56, 18.16 या 18। ठीक है, कोई भी दो एग्जांपल देते हैं। एंड द लास्ट एग्जांपल क्लास विल बी जेंडर, लास्ट एग्जांपल क्लास विल बी जेंडर, और जेंडर की डेटा क्लास अगेन क्या होगी, इट विल बी टेक्स्ट, एंड सैंपल डेटा क्लास या तो मेल या फिर फीमेल। क्लास 8 मार्क्स। बोले क्लास स्टेट द फील्ड यू वुड चूज एज अ प्राइमरी की, तो क्लास शीप आईडी। और आगे बोल रहे क्लास ये क्वेरी बाय ग्रिड एग्जांपल कंप्लीट कर दो, तो क्लास जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने क्लास यहाँ पे फील्ड डिसाइड कर लेते हैं कि राइट डाउन आइडेंटिफाई द एयर टैग्स, तो एयर टैग के लिए क्लास मैंने गलती से नाम क्या रख दिया था, शीप आईडी, तो वो यूज करूंगा अब मैं यहाँ पे क्लास। अच्छा जी, ऑफ ऑल मेल मतलब क्लास जेंडर आएगा यहाँ पे, और वेटिंग ओवर वेट आएगा क्लास, और डिस्प्ले द एयर टैग्स ओनली। ठीक है। तो आपका टेबल का क्लास क्या नाम है, शीप, शीप एंड क्लास शीप। ठीक है। और एयर टैग सिर्फ हमें शो करने क्लास मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया। सॉर्टिंग इसने बोला नहीं है। क्लास जेंडर इसने बताया मेल होना चाहिए, तो क्लास शुड बी इक्वल टू मेल। एंड वेट क्लास क्या होना चाहिए, एंड वेट क्लास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 kg। केजी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 फाइन। सो दिस गिव्स क्लास अस 3 मार्क्स एज वेल। तो क्लास टोटल 12 मार्क्स का क्लास क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, 12 मार्क्स। ठीक है। लेट्स सी इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस अभी, लेट मी चेक। नहीं, डेट ऑफ बर्थ का नंबर नहीं लिख सकते, या तो टेक्स्ट लिखो या फिर यू कैन राइट, या यू कैन राइट डेट, डेट भी एक डेटा टाइप है आपके पास। ठीक है, नंबर नहीं, नंबर नहीं। ठीक है निहाल, नंबर नहीं। सो अब मैं आप लोगों को क्लास आखिरी एक सवाल करवाता हूँ, देन बस हम लोग आज ऑफ करेंगे। और इंशाअल्लाह अगली क्लास में, कल की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कुछ जो रिमेनिंग स्टफ है पेपर 2 का, बहुत सारी चीजें रिमेनिंग है, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आप लोगों को कवर अप करवा के पेपर 2 हम लोग अपना वैसे प्रैक्टिकली वाइंड अप करेंगे। ठीक है। और फिर हम लोग बाद में फिर इसके पास पेपर तो करनी है अभी हमें बहुत सारे, और प्री रिलीज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप लोगों को अभी मैं दूंगा। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, दिस वाज द क्वेश्चन क्लास, मैंने आप लोगों को छुड़वा दिया था पहले स्टार्टिंग के अंदर। ये बता रहे क्लास एक डेटाबेस है, क्लास द नेम ऑफ द डेटाबेस इज स्टाफ फोन, एंड क्लास दिस वाज सेट अप to show the telephone extension numbers of the members of the staff working in the departmental store। क्लास फील्ड कौन कौन सी है हमारे पास, नेम, डिपार्टमेंट एंड क्लास एक्सटेंशन। अब ये बता रहे क्लास एक्सप्लेन व्हाई नन ऑफ द फील्ड इन द डेटाबेस क्लास कैन बी यूज्ड एज द प्राइमरी की। तो आप लोग क्लास सिंपली यहाँ पे बता देंगे बिकॉज नन ऑफ द फील्ड इज हैविंग unique records for sorry, none of the field class is having unique records, that's it।
सो अगर इस सवाल को हम लोग क्लास जवाब दें तो सिंपली क्लास क्या होगा इसके अंदर, नो फील्ड is having unique records. Repetition of data. That's why. ठीक है, बोले क्लास प्राइमरी की बताओ, तो क्लास स्टाफ के बारे में चल रहा है, तो आई थिंक स्टाफ आईडी इज फाइन. और क्लास रीजन यूनिक फॉर एवरी रिकॉर्ड जो पहले लिखवाया था आप लोग को. अब क्लास यहां पर आ जाए, ये असल सवाल है. ये बोला क्लास यूज द क्वेरी बाय ग्रेट एग्जांपल टू लिस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ स्टाफ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है क्लास असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, ग्रुप्ड बाय डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. तो क्लास आपको कौन कौन सी फील्ड चाहिए, नेम एंड डिपार्टमेंट चाहिए आपको सिर्फ. तो आपने क्लास यहाँ पे क्या किया, नेम और डिपार्टमेंट लिख दिया. यू नो टेबल एक ही है, टेबल का नाम क्या था, टेबल हमारे पास क्लास सिर्फ एक ही है, टेबल का नाम क्या था हमारे पास, द नेम ऑफ द टेबल वाज स्टाफ पून. स्टाफ पून. शॉर्टिंग क्लास आपको क्या करनी थी, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर. ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. एंड अब देखिए क्लास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज की गई है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. तो भी याद रखना आप लोगों ने क्लास, जब भी ग्रुप बाय की स्टेटमेंट यूज हो बिटवीन टू टेबल्स, between two fields, so class all the properties of the one field will be applied class to the other field as well. तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट बोला है, तो क्लास आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, असेंडिंग. और क्लास ये असेंडिंग आपके पास डिपार्टमेंट के अंदर भी आएगा. और क्लास आपको शो करना था नेम, तो क्लास नेम आपके पास क्लास आप शो डिपार्टमेंट भी करेंगे. क्यों, क्यों, बिकॉज क्लास इट वाज यूज्ड एज अ ग्रुप बाय स्टेटमेंट. तो क्लास व्हेनेवर ग्रुप बाय की स्टेटमेंट यूज हो, जितने भी क्राइटेरिया है, जितने भी लॉज हैं आपके पास क्लास, दे विल बी अप्लाइड टू अदर्स एज वेल. आपका बाकी जगहों पे भी क्लास वो रूल्स वो रेगुलेशन अप्लाई किए जाएंगे. ठीक है, तो ये ग्रुप बाय का क्लास याद रखिएगा बस हमेशा, कि जब भी जो भी लॉज हैं, जो भी आपके पास रूल्स हैं, दे विल बी अप्लाइड टू द अदर फील्ड्स एज वेल. ठीक है, सो आज इसको क्लास बस यहीं तक रखते हैं हम लोग.